Very good morning, students. We have started fifth chapter in accounts, and theory portion and question number 3, first three sums were explained in class. Now we will continue with fourth sum. A and B are partners in a firm, sharing profit loss in the ratio of 2:1, and they admitted C as a new partner for 1/5 share. C will acquire 1/10 from A and 1/10 from B. Now see what details are given. First I am writing here two partners A and B. Their old P&L ratio is given, that is 2:1. They admitted new partner C with 1/5 share. Yes, in previous sum up to this point details were given. In this sum one more information is given that C is getting this 1/5 share from A and B. So here I am just showing you separately. A is getting this share from C is getting 1/5 share from A and B, and in what proportion that is given? See, 1/10 from A and same 1/10 from B. Now see, in previous sum ratio was given, yes, so you have to find the sacrifice first, but here direct sacrifice is given. So these are sacrifices of A and B. You can write in ratio form. The sacrificing ratio is 1:1. Now you have old ratio and you have sacrifice ratio. You can find new ratio. So first we will write the formula of new P&L ratio. So here new is equals to old share less sacrifice. नाउ सी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है अभी तक आपको सेक्रीफाइस का फॉर्मूला आ रहा था. सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, एंड उसी फार्मूला से ये फार्मूला बना है. आपको न्यू रेशियो चाहिए. न्यू शेयर क्या है? सो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड शेयर था उसमें से जो उसने सेक्रीफाइस किया वो हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो उसका न्यू शेयर होगा. यस, सो फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर पार्टनर ए. नाउ सी ए का जो ओल्ड शेयर है वो क्या है? 2/3. यहाँ पे टोटल 3 है. यस, so we will take old share as 2/3. And what is the sacrifice of partner A? See, 1/10. So minus 1/10. And here in denominator we want 30. So cross multiplication, 10 multiply 2 and 3 multiply 1. So 20, बीच में माइनस का साइन है, and here 3. So you will get new share of partner A 17/30. Yes, the same way we have to find for B. Now see, what is old share of B? It is 1/3. So here old share is 1/3 minus the sacrifice of B is same 1/10. So here 1/10. Again denominator 30. 10 ones are 10. बीच में माइनस का साइन है, and 3 ones are 3. So you will get 7/30.
This way you have to find new P&L ratio for A and B. And now onwards there are 3 partner. So जो C का शेयर दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, that is 1/5. So here C 1/5. But see, denominators are not equal, so you cannot write in ratio form. So यहाँ पे C का जो शेयर है 1/5, वहाँ पे डिनोमिनेटर 30 चाहिए. सो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 6/30. Now you can write in ratio form. New P&L ratio is 17:7:6. Yes, this is new P&L ratio. So this way you have to solve this fourth sum. Now next, sum number 5. See what details are given. A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. They admitted D as a new partner. First I am writing all these details. So here are 3 partners, A, B and C. Their old ratio is given 5:3:2. And they admitted new partner D in the firm. Now see what details are given. A sacrifices 1/20th from his share and B sacrifices 3/40th from his share. So here A is getting the share 5. Yes. Now from this share what A is sacrificing 1/20th from his share and 3/40 B is sacrificing from his share. Yes. Now see here 1/20th from his share, it means whatever A is getting from that 1/20th share he will give to the new partner. Yes. So direct sacrifice is given. Here you can write sacrificing ratio, but first you have to make denominator equal. So in sacrifice of A, denominator is 20 and we want 40 as we want to write in ratio form. So here multiply 2. So now you can write in this way 2/40 and 3/40. So you can write sacrificing ratio, that is 2:3, क्योंकि आपको हर सम में sacrifice ratio भी लिखना है. Yes, तो ये sacrifice ratio आया. Now new P&L ratio अभी भी आपको ढूंढना है. Yes, so for that you have sacrifice. आपको यहाँ पे sacrifice इस सम में दिया ही हुआ था. Yes, so आपको डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से न्यू रेशियो ढूंढना है. जैसे इसके प्रीवियस सम में हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. सो यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस जो मैंने सर्कल किया है वो भी दिया हुआ है. सो हम डायरेक्टली न्यू रेशियो फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर फार्मूला. न्यू रेशियो, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू old share minus sacrifice. First we will find for partner A. Now see what is old share of A. It is 5 out of what is total here, 5, 3 and 2. So total is 10. So 5/10. So here you have to write 5/10.
And what is sacrifice of partner A? You can see it is 1 by 20, or after making denominator equal, it is 2 by 40. Both are same. So whatever you want you can take. Either you can take 1 by 20 as sacrifice of A और 2 by 40. yes, आगे चल के जब आपको रेशियो फॉर्म में लिखना होता है तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है. सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 by 40 ही लूँगी, तो आगे चल के मुझे वापस से डिनोमिनेटर इक्वल ना करना पड़े. yes, so I'm taking sacrifice this 2 by 40. yes, so old minus sacrifice. Now here see there is no need to directly क्रॉस मल्टीप्लाई इट. यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 400 आ जाएगा. सो इट्स बेटर, यहाँ पे तो 40 है ही. यहाँ पे अगर मुझे 40 चाहिए तो मुझे ये जो फर्स्ट मैंने 5/10 लिखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 40 आ जाएगा. सो हम डिनोमिनेटर में 40 लेंगे. एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 -2. यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 40 ही है. सो यू विल गेट 18 by 40. Now same way we will find for B. So here B's old share is 3 by 10. Yes, 3 by 10. So here I am writing 3 by 10, and the sacrifice of B is given, see it is 3 by 40. So here 3 by 40, again same denominator 40, and here we have to multiply with 4. So 4 3s are 12 minus 3. So you will get 9 by 40. yes, नाउ सी यहाँ पे पार्टनर सी का कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं दिया है. इट मीन्स पार्टनर सी ना ही गेन कर रहा है ना ही कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है. उसका जो ओल्ड शेयर है वही उसका न्यू शेयर रहेगा. सो पार्टनर सी का जो ओल्ड शेयर है वही सेम रहेगा 2 by 10. सो हियर आई एम राइटिंग फॉर पार्टनर सी 2 by 10. बट अगर हमें न्यू रेशियो लिखना है तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अगर मुझे डिनोमिनेटर 40 चाहिए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे आपका C का जो न्यू शेयर है वो आ जाएगा 8 by 40. अब मैंने पार्टनर A B C का तो लिख दिया है, D का आपको लिखना है. अब देखो यहाँ पे D के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसकी दो मेथड है. आप दोनों मेथड से डी का शेयर फाइंड कर सकते हो. एक तो टोटल प्रॉफिट 1 होता है. सो 1 में से आप ये तीनों माइनस कर दो, तीनों का शेयर जो रिमेनिंग बचेगा वो डी के लिए होगा. यस, और दूसरा जो मेथड है, दो पार्टनर का सेक्रीफाइस तो हमारे पास है, उन दोनों सेक्रीफाइस को प्लस कर दो. यस, पार्टनर ए ने कुछ शेयर दिया, पार्टनर बी ने कुछ शेयर दिया. इट मीन्स उन दोनों का टोटल बन के डी का शेयर हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं दोनों के सेक्रीफाइस को ही प्लस करूँगी. सो हियर you can write the formula, D's share is equals to sacrifice made by partner A plus sacrifice made by partner B. So दोनों का sacrifice है 2 by 40, 3 by 40. दोनों को मैं प्लस कर दूंगी.
2/40 plus 3/40, so you will get 5/40. अब देखो चारों पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम है 40, सो यू कैन राइट इन रेशियो फॉर्म 18:9:8:5, दैट इज न्यू P&L रेशियो. 18:9:8:5. Yes, this way you have to solve sums for new P&L ratio and to find sacrifice ratio. The next sum number 6th and 7th. 6th sum and 7th sum are closely related, it is similar. So I will explain sum number 7. You have to solve sum number 6 by yourself. First I'll explain sum number 7, then I'll just give overview of sum number 6. See, sum number 7, 3 partners. That ratio is given in percentage form, 20%, 40%, 40%. So you can write 2:4:4. Yes. They admitted D as a new partner and यहाँ पे D का share दिया हुआ है 1/8. First I am writing these details. So here 3 partners A, B and C. Their old ratio is 20%, 40%, 40%. But when you will just make it equal, like see, I'll show you here. 20%, it means I can write in this way. Yes, and 40%, it means I can write in this way, 40/100. Yes, अब देखो सब में आप 0 0 कट कर सकते हो. एंड फिर आएगा 2/10, 4/10, 4/10. एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन रेशियो फॉर्म यू कैन राइट 2:4:4. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ. The ratio is 2:4:4. Yes. They admitted new partner D. यहाँ पे D का शेयर दिया हुआ है. So I'm just writing here 1/8. Now see what other details are given. D is to receive this share from B and C in the ratio of 3:2. अब D को जो ये 1/8 शेयर मिल रहा है ये 2 पार्टनर से मिल रहा है. तीनों पार्टनर इसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं. जो D को 1/8 शेयर मिल रहा है वो पार्टनर B एंड पार्टनर C से मिल रहा है. अब जैसे प्रीवियस सम में डायरेक्ट दिया हुआ था कि B इतना पोर्शन देगा, C इतना पोर्शन देगा. यहाँ पे वो पोर्शन नहीं दिया है, यहाँ पे एक रेशियो दिया है, दैट इज़ 3:2. यस, ये रेशियो दिया है. तो अब ये जो 1/8 शेयर है उसका पहले हम रेशियो की हेल्प से 2 पार्ट में दोनों का शेयर निकालेंगे कि B कितना दे रहा है और C कितना दे रहा है. यस, दोनों मिलके जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो टोटल 1/8 बनेगा. यस, तो 1/8 को हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि इसमें से B कितना दे रहा है और C कितना दे रहा है. एंड वी विल यूज़ दिस रेशियो. यस, ये सेक्रीफाइस रेशियो दिया ही हुआ है, इसी रेशियो में हम दोनों का सेक्रीफाइस ढूंढेंगे. नाउ सी, D का जो शेयर है वो 1/8 है. 1/8 में से B कितना दे रहा है 3/5. हम ये वाला लेंगे यहाँ से 3/5, इतना वो पार्टनर B से लेगा. एंड 1/8 शेयर में से वो C से कितना लेगा, C 2/5. And you will get 3/40 here and 2/40 here. Yes, these are the sacrifices made by partner B and partner C. अब आपके पास B ने क्या सेक्रीफाइस किया और पार्टनर C ने क्या सेक्रीफाइस किया वो आपके पास है. आपके पास ओल्ड रेशियो भी है. सो अगेन जो प्रीवियस सम में हमने फॉर्मूला लगाया था न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए,
न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो हियर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड minus sacrifice. First we will find for partner A. Now see partner A का जो old share है वो है 2 out of what you have to write the total 4, 4, 8 and 2, 10. So partner A जो है उसका old share है 2/10. Yes. So ये फॉर्मूला में हम लिखेंगे old share 2/10 माइनस सेक्रीफाइस. अब पार्टनर ए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है. सी यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो सिर्फ पार्टनर बी और पार्टनर सी का ही दिया हुआ है. इट मीन्स पार्टनर ए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, उसे कुछ सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, कुछ गेन नहीं हो रहा है. सो वी विल जस्ट राइट 0. सो उसका जो न्यू शेयर है वो सेम वही आएगा ओल्ड शेयर 2/10. Yes. Same way we will find for partner B. B is equals to B का old share देखो क्या है 4/10. So here 4/10 माइनस B का सेक्रीफाइस देखो क्या है. यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस रेशियो दिया था, उससे हमने B का सेक्रीफाइस ढूंढ लिया 3/40. सो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लेंगे 3/40. अगेन ये यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हम डिनोमिनेटर में 40 ले लेंगे एंड जो हमारा फर्स्ट फिगर है 4/10 उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा. यस. सो 4 4 सा 16 माइनस 3. सो यहाँ पे जो न्यू शेयर है बी का वो आ जाएगा 13/40. Yes. Then same way we will find for partner C. C का देखो ओल्ड शेयर क्या है 4/10. सो हम फॉर्मूला में लिखेंगे 4/10. C ने देखो क्या सेक्रीफाइस किया है. हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दिया था एंड उसकी हेल्प से हमने ढूंढा था कि C सेक्रीफाइस कर रहा है 2/40. सो C का सेक्रीफाइस है 2/40. सेम हम फॉर्मूला में लिखेंगे 2/40. देन हियर डिनोमिनेटर 40. ये जो फर्स्ट फिगर है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा. सो हियर 4 4 ज़ा 16. 16 माइनस 2. 14/40. Yes. Then let me just separate it. ये जो हमने पार्टनर डी का जो शेयर दिया था उससे जो कैलकुलेशन की थी उसको मैं सिर्फ सेपरेट कर देती हूँ. यस. देन सेम वे वी हैव टू फाइंड फॉर पार्टनर डी. पार्टनर डी तो न्यू आ रहा है फर्म में, सो हम डायरेक्टली उसका शेयर लिख देंगे. सी डी का शेयर तो आपको स्टार्टिंग में ही दिया था 1/8. सो हियर इसका जो शेयर है वो आएगा 1/8. अब देखो अगर आपको न्यू रेशियो लिखना है तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में है 10, फिर है 40, देन सी का है 40 एंड यहाँ पे है 8. सो रेशियो फॉर्म में अगर लिखना है तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा. सो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर 40 करके रेशियो लिख सकते हो. सो अगर आपको यहाँ पे 40 चाहिए तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस. 8 5 ज़ा 40 एंड सेम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू विल गेट 5/40.
एंड सेम पार्टनर ए का भी डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यू विल गेट 8/40. Yes, so now you can write in ratio form. The new P&L ratio is 8:13:14:5. So this is new P&L ratio, 8:13:14:5. Yes. The next sum, yes, sum number 6 is your homework. Let me show you what is different than sum number 7. See, there are only 2 partners. Yes, sum number 6 में सिर्फ 2 पार्टनर है, जबकि सम नंबर 3 में 3 पार्टनर्स थे. Yes, देन न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था, यहाँ पे भी न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है. देन यहाँ पे जो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे वो इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे थे, एंड यहाँ पे आपको 3:2 दिया था. यस, सो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे और पार्टनर ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था. बट अगर हम सम नंबर 6 देखें तो 2 ही पार्टनर हैं और वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं. यस, इतना ही डिफरेंट है, रेस्ट पूरा सम सेम ही रहेगा. ये सम आपको खुद करना है. सम नंबर 6 इज़ योर होमवर्क.